Hello, friend. Welcome to my YouTube channel. Welcome to my blog. গুড ইভিনিং। আমরা চলেছি ঝাঁসি কেলা, আর আজ তোমাদের দেখাবো, আগের ভিডিওতে বলেছিলাম লাইট শো দেখানোর কথা বলেছিলাম, আজ তোমাদের দেখাবো লাইট শো। ঝাঁসি কেল্লাতে লাইট শো তোমাকে দেখাবো ঝাঁসি রানী লক্ষ্মীবাইয়ের জীবন কাহিনী। তো আমার ভিডিওটা পুরো দেখবে, না হলে শুরু শেষ কিছুই বুঝতে পারবে না। তার আগে আমার ভিডিওটাতে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করে দেবে। তোমাদের একটা লাইক, একটা কমেন্ট, একটা শেয়ার আমাকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করনি তাদেরকে অনুরোধ, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। নতুন নতুন ভিডিও, নতুন নতুন ব্লগ, নতুন নতুন ফানি ভিডিও, ফানি শর্ট ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্যে। তো সঙ্গে থাকো, চলো। তোমাদেরকে আজ ঝাঁসি কেলা তৃতীয় পার্ট দেখাবো, লাইট শো। আমরা এখন যাচ্ছি। প্লিজ মাই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব। আমরা আস্তে আস্তে যে জায়গাটার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি সেই জায়গাটাতে পৌঁছানোর মুহূর্তে যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তাদেরকে অনুরোধ, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। দেখো কেলার বাইরের অংশ, বাইরের দৃশ্য, কত সুন্দর লাইটিং। আমরা এখনই কেল্লার সামনে পৌঁছে যাচ্ছি। দেখো পার্ক, পার্ক দেখো শুধু লাইটিং আর লাইটিং। ওই দেখো কেল্লার বাইরের পরিবেশ, কেল্লার বাইরের দৃশ্য এত সুন্দর লাইটিং করেছে। তোমরা যদি না আসো, নিজের চোখে না দেখো, তাহলে তোমরা বিশ্বাস করবে না। আমরা এখন গাড়িটা পার্কিং করব। পার্কিংয়ের জায়গায় আমরা ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছি। গাড়িটা পার্কিং করানোর জন্যে ওই ভাইটা আমাদের স্লিপ দিচ্ছে।
প্রথমে যে 100 টাকার নোটটা দিয়েছিল দাদা, ওই ভাইটা বলছিল, স্যার এ চলবে না, ছেঁড়া আছে। তাই দাদা চেঞ্জ করে অন্য টাকার নোটটা দিল, তার সঙ্গে বাকি টাকা রিটার্ন করছে। এইবার আমরা সামনের দিকে কেল্লার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। দেখো কেল্লার বাইরের দৃশ্য। এটা মেন গেট। দেখো সন্ধ্যাবেলার ঝাঁসি শহরের দৃশ্য, শুধু লাইটিং আর লাইটিং। আমরা আস্তে আস্তে ভিতরের দিকে প্রবেশ করছি। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ কেল্লার বাইরের দৃশ্য। আমরা আস্তে আস্তে ভিতরে প্রবেশ করার জন্য টিকিট কাউন্টারে চলে গেছি। মাথা পিছু 25 টাকা এটা ভিতরে প্রবেশ করার জন্য। আস্তে আস্তে আমরা ভিতরে প্রবেশ করছি গেটের ভিতরে। ওখানে সিকিউরিটি বসে আছে। সিকিউরিটি হাতটা বাড়িয়ে টিকিটটা নেওয়ার জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল। আমরা টিকিটটা দিলাম। তারপর সিকিউরিটি আমাদেরকে অনুমতি দিল ভিতরে প্রবেশ করার। আস্তে আস্তে আমরা ভিতরে প্রবেশ করে লাইট শোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো। এটা মেন গেট, তোমাদেরকে দ্বিতীয় পর্বেও দেখিয়েছিলাম। সেটা দিনের বেলায় ছিল, আর এটা সন্ধ্যাবেলা। দেখতে থাকো। দেখো কত কত মানুষজন এসছে, আমাদের মতন কত মানুষজন এসছে এই লাইট শো দেখার জন্য। দেখো সবাই সেলফি নিচ্ছে, ভিডিও করছে, রিলস ভিডিও করছে। আস্তে আস্তে আমরা সেই গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। দাদা আগে, আমি পিছে। প্লিজ আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি।
তাদেরকে অনুরোধ করে বলছি সাবস্ক্রাইব করে দাও নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য, নতুন নতুন শর্ট ফানি ভিডিও দেখার জন্যে। সন্ধ্যার পরিবেশটা দেখো, কেল্লার ভেতরের কত সুন্দর সুন্দর লাইটিং। আগে ছিল না এগুলো, যেহেতু এখন মানে আস্তে আস্তে সরকারটাও ডিজিটাল হয়েছে আর সব কিছু ডিজিটাল হচ্ছে। এখানে পুলিশ, সেফটির জন্য পুলিশ আছে। আমরা এখান থেকে লাইট শো, সাউন্ড দেখার জন্য টিকিট কেটে নেব। দাদা টিকিট কাটছে, মাথা পিছু 150 টাকা, শনি রবিবার 250 টাকা মাথা পিছু। দাদা ওখান থেকে টিকিট নিয়ে নিল। এখানে সব পুলিশ অফিসাররা বসে আছে। আস্তে আস্তে এবার আমরা লাইট শো ভিতরে পৌঁছে যাব। আমাদের মতন অনেকেই এখানে ওয়েট করছে লাইট শো দেখার জন্য। শুরু হওয়ার মুহূর্তে তো তোমরা এখনই দেখতে পাবে লাইট শো অ্যান্ড সাউন্ড শো। এখনই শুরু হওয়ার মুহূর্তে সবাই ওয়েট করছে এখানে লাইট শো দেখার জন্য। আমরাও উপস্থিত হয়ে গেছি। আমরাও নিজেদের জায়গা নিজেরা বেছে নেব বসার জন্য। कितनी बिजली थी हाथों में, ये तलवारों से पूछो। साक्षात दुर्गा थी युग की, ठाकुर द्वारों से पूछो। घुड़सवार आंखों में ज्वाला लिए शत्रु की छाती पर कैसे किले के पार कूदी थी, इन दीवारों से पूछो। पीड़ा से दिल मिलाता, गौरव से झिलमिलाता, मैं झांसी का किला हूं। बेतवा और पहुंच नदियों के बीच बुंदेलखंड के पश्चिम में बसा है झांसी शहर। और झांसी शहर के केंद्र अपनी ऊंची ऊंची प्राचीरों के साथ कई सदियों से खड़ा हूं मैं, झांसी का किला। सन 1613 ईस्वी में ओरछा नरेश महाराज वीर सिंह देव ने मेरा निर्माण करवाया था। 18वीं सदी की शुरुआत पेशवा बाजीराव प्रथम ने जब फर्रुखाबाद के नवाब मोहम्मद खान मंगल से युद्ध करने के लिए बुंदेला राजा छत्रसाल की ओर मदद का हाथ बढ़ाया, तो राजा छत्रसाल ने अपना दिल खोलकर उनका आभार व्यक्त किया। पेशवा बाजीराव प्रथम को
झांसी के साथ कुछ और भी क्षेत्र की हुई है। इस तरह झांसी रजवाड़ा मराठा साम्राज्य में ढल गया और ध्वज बदल गया। 18वीं सदी की समाप्ति के बाद झांसी की सूबेदारी का जिम्मा नेवालकर को सौंपा गया। इसी मंच ने भारत के मुकुट में वह अनमोल हीरा चढ़ा जिसकी अद्वितीय चमक पर भारतीय इतिहास गर्व करता है। नेवालकर मंच की वह मंच था जिसकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नायिका। मोरपंत तांबे एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी भागीरथी ने एक कन्या को जन्म दिया। पिता ने नाम रखा मणिकर्णिका। सबकी चहेती मणिकर्णिका को मां प्यार से मनु कहकर बुलाती थी और पेशवा बाजीराव द्वितीय छबीली कहकर पुकारते थे। जमुना जी की मृत्यु उपरांत मोरोपंत तांबे जी काशी से बिठूर आ गए थे, जहां वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम करते थे। नटखट मासूम मणिकर्णिका सबकी चहेती थी, लेकिन कमाल वह नहीं खेलती थी लट्टू या गिट्टी से। उसे तो लगाव था काशी की संस्कृति और मिट्टी से। उसे प्रेम नहीं था एकांत की अटारी से। वह तो मैदान में खेलती थी बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी से। ज्ञान लेने के लिए नहीं जाती थी इस तक या उस तक। उसकी शिक्षिकाएं थी उस तक। किसे पता था इस छबीली मनु का रिश्ता झांसी से जुड़ने वाला है। झांसी के गणेश मंदिर में 19 मई 1842 के शुभ दिन पर नेवालकर के महाराज गंगाधर राव से उनका विवाह हुआ और मेरे आंगन में जब उनका प्रवेश हुआ तो लगा मानो साक्षात लक्ष्मी का आगमन हुआ है। काशी की मणिकर्णिका को झांसी ने नया नाम दिया, लक्ष्मीबाई। अपने नए नाम लक्ष्मीबाई के साथ वह झांसी के लिए लक्ष्मी बनकर आई थी। राज्य में वैभव लाई थी। विवाह के हर्षोल्लास के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत ने महाराज गंगाधर राव को आधिकारिक तौर पर झांसी का राजा स्वीकार किया। उन्हें सभी प्रशासनिक अधिकार प्रदान कर दिए गए। ऐसा करने से झांसी के राजा और प्रजा दोनों को लाभ हुआ। राज्य की आमदनी में बढ़ोतरी हुई। महाराज गंगाधर राव को कड़क बिजली और भवानी शंकर की तोपों से सलामी दी। महाराज गंगाधर राव एक कुशल प्रशासक थे, काफी उदार और कला प्रेमी थे। उनकी नाट्यशाला में साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक की रसरशा होती रहती थी। संगीत की स्वर लहरियां गूंजा करती थी, तो दूसरी ओर कारावास में कठोर दंड पाए हुए अपराधियों की चीख पुकार दिल दहलाती थी। झांसी की न्याय प्रणाली ही कुछ ऐसी थी कि छोटे मोटे अपराधियों को भी फांसी की सजा सुना दी जाती थी। और जिस जगह आप लोग बैठे हुए हैं ठीक यही वो फांसी का था। एक दिन लक्ष्मीबाई सुबह सुबह शिव पूजन के लिए इधर से जा रही थी। उन्होंने फांसी सजा याफ्ता एक अपराधी की चीख सुनी। उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने
महाराज गंगाधर राव से इस फांसी की सजा और इस फांसी का को झांसी से सजा हटाने का अनुरोध किया। इस अमानवीय न्याय प्रणाली को जल्द से जल्द रोकिए महाराज। फांसी की सजा और ये फांसी घर झांसी के किले से सदा सदा के लिए हटवा लें, आपसे मेरा यह अनुरोध है। महाराज ने रानी का अनुरोध स्वीकार कर दिया और झांसी में फांसी की सजा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया। उसी दिन से झांसी गले की फांसी, दरिया गले का हार सिर्फ कहानियों की बात नहीं। झांसी की प्रजा ने इस नर्म दिल आदेश की सराहना की और महाराज का अभिनंदन किया। झांसी में इंसानियत की हवाएं बहने लगी। देश प्रेम की एक लहर के साथ नई ऊर्जा का प्रसार होने लगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केवल पुरुषों की नहीं रह गई थी, महिलाओं ने भी कमान संभाल ली। रानी लक्ष्मीबाई स्वयं तलवारबाजी एवं घुड़सवारी में निपुण थी। उन्होंने झांसी की स्त्रियों में भी इस कौशल का विकास किया। शस्त्रागार में नए हथियार डलने लगे। एक तोप का नाम झांसी की रानी रखा गया। क्या धमाका था। धीरे धीरे तैयार होने लगी इस युवा रणकर्मी की दुर्गा सेना। नाट्यशाला में दो कुशल नृत्यांगनाएं थी, मोतीबाई और जूही। मैंने स्वयं देखा कि कैसे नृत्य का अभ्यास छोड़कर वे रणभूमि में तलवारबाजी और घुड़सवारी के गुर सीखने लगी। देखते ही देखते रानी लक्ष्मीबाई की दुर्गा सेना झांसी की सुरक्षा करने में समाप्त हो गई। झांसी में जो लक्ष्मी बनकर आई थी वो अब दुर्गा बनकर प्रजा के दिल पर राज करने लगी। कुछ समय बाद वो बल भी आ गया जिसका झांसी राज्य बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रानी लक्ष्मीबाई की गोद भर गई। झांसी राज्य को उसका उत्तराधिकारी मिल गया। महाराज गंगाधर के आंगन में थालियां बजी। पूरा झांसी राज्य खुशियों से सराबोर हो उठा। झांसी के इस उत्सव को न जाने किसकी नजर लग गई। खुशियों की शहनाइयों से अचानक मातम के स्वर फूटने लगे। मात्र 3 माह की किलकारी को क्रूर काल निकल गया। रानी की गोद जल गई। इस घटना से महाराज गंगाधर को गहरा सदमा लगा। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्हें लाइलाज रोने घेर लिया। महाराज को झांसी के भविष्य की चिंता सताए जा रही थी। झांसी के राज सिंहासन को वारिस मिल सके,
इस उद्देश्य से उन्होंने अपने ही वंश के एक बालक को गोद दे दी। महाराज गंगाधर और रानी लक्ष्मीबाई ने इस दत्तक पुत्र का नाम रखा दामोदर राव। अभी झांसी के भविष्य की सुरक्षा डावाडोल ही थी कि झांसी के वर्तमान का सूरज भी बुझ गया। असमय निधन हो गया महाराज गंगाधर राव का। रानी लक्ष्मीबाई ने किसी तरह होश संभाला। तब उन्होंने पीड़ा के आंसुओं को पोंछकर एक संरक्षक के रूप में झांसी की बागडोर अपने हाथों में दे दी। इधर रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का शासन संभाला और उधर ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को हथियाने के हथियार शुरू कर दिए। झांसी में तैनात अपने पॉलिटिकल असिस्टेंट मेजर एलिस के जरिए रानी तक अपना फरमान पहुंचाया। रानी साहिब, सन 1804 में हुई संधि के मुताबिक झांसी भी दूसरे पड़ोसी राज्यों की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आता है। अब चूंकि स्वर्गीय महाराज गंगाधर राव की अपनी कोई संतान नहीं है, इसलिए कंपनी उनके गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को झांसी के उत्तराधिकारी का दर्जा नहीं दे सकती। आपको सूचित किया जाता है कि अब झांसी राज्य पूरी तरह से कंपनी के अधीन रहेगा। इसके एवज में कंपनी रानी लक्ष्मीबाई को उनके निजी खर्च के लिए 5,000 रुपया महीना की पेंशन अदा करने की मंजूरी देती है और साथ ही रानी लक्ष्मीबाई को हुक्म देती है कि वे जल्द से जल्द अपने जरूरी सामान के साथ झांसी का किला खाली कर दें। हम सुना करते थे कि व्यापारियों के भेष में लुटेरे हैं आप लोग। आज आपने इस बात को सिद्ध भी कर दिया। वापस जाकर कह दीजिए अपने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से हम उनका फरमान स्वीकार करते हैं। मैं अपने जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अंग्रेजी फरमान सुनकर रानी लक्ष्मीबाई क्रोध की ज्वाला से दहक उठी। वो जानती थी कि अंग्रेज झांसी को हथिया कर उसे बर्बाद करना चाहते हैं। वो किसी भी कीमत पर किला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। देशमुख जी ने उन्हें शांति से समझाया। श्रीमान, मैं आपकी पीड़ा और क्रोध को समझ सकता हूँ। देखिए, अभी समय हमारे अनुकूल नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में समझौता करना ही एकमात्र रास्ता है। क्या कह रहे हैं देशमुख जी? आप ऐसा तो कह सकते हैं। मैं इस लड़ने के आगे झुक जाऊं और अपनी झांसी में सौंप दूं। गलत मत समझिए श्रीमान। अगर आप शांति से विचार करें तो ये भी हमारी एक कूटनीति होगी। अंग्रेजों की बात अभी मानकर एक और स्वतंत्र रहेंगे, दूसरा उनके खिलाफ किसी भी गतिविधि में शामिल होने पर उन्हें आपका शक भी नहीं होगा। रानी लक्ष्मीबाई ने देशमुख जी का सुझाव मान लिया। दिल पर पत्थर और मन में ढेर सारी यादें रखकर रानी ने किला छोड़कर रानी महल में रहने का फैसला किया। जाते जाते रानी ने झांसी को अपना संदेश दिया। इस किले से जाने का ये मतलब नहीं है कि मैं हार गई। असली युद्ध तो अभी बाकी है। बिठूर में पेशवा बाजीराव ने मुझे देश प्रेम, स्वधर्म और स्वराज की शिक्षा दी थी। अब समय आ गया है कि मैं उनके द्वारा बताए गए स्वराज के मार्ग पर ही चलूं। इसके लिए चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े, मैं एक दिन स्वराज की पताका जरूर फहराऊंगी। गीता में लिखा है, अधोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम चित्वा मोक्षसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। कि जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को रणभूमि में कहा कि युद्ध के दौरान अगर मारे जाओगे
तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर जीत हुई तो पृथ्वी पर राज्य का आनंद लोगे। तो हे कुंती पुत्र, उठो और युद्ध करो। इतना कहकर रानी स्त्री को छोड़ चाहिए। उससे दुल्हन बनकर आई रानी को मेरी देहरी से बाहर जाए। मेरी दीवारें टूट कर हुई। मेरी प्राचीन की छाती पर बंधुआ दाग की तरह काट दिया गया फिरंगी हुकूमत का झंडा। हंसती खेलती झांसी का सुख वैभव छिन गया। अंग्रेजी हुकूमत ने न केवल आम जनता को प्रताड़ित किया, बल्कि रानी का अपमान करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा। रणनीति के अनुसार रानी अपमान का यह करवा कूट पीने के लिए मजबूर थे। इस कठिन समय में एक दिन पेशवा नाना साहब का संदेशा लेकर रानी के पिता मोरोपंत जी उनसे मिलने आए। बेटी मनु, पेशवा का तुम्हारे लिए संदेश है कि तुम्हें झांसी राज्य की कमान संभालनी होगी। अब से लगभग 4 महीने बाद 31 मई को रविवार के दिन पेशावर से बंगाल तक की सारी फौजी छावनियों में बगावत का बिगुल मचा दिया जाएगा। तुम्हें इस जंग के लिए तैयार रहना होगा। अब्बा साहब, पेशवा को कहने के लिए निश्चिंत रहे। इस जंग का तो हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था। लेकिन समय से पहले ही 29 मार्च को मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर की छावनी में अंग्रेजों के खिलाफ किला बोल दिया गया। मंगल पांडे की शहादत का शुभ समाचार भी आया। लेकिन 10 मई आते आते मेरठ में भी बगावत की शुरुआत हुई, जो दिल्ली को आजादी दिलाने का इंतजार पहुंची। अखबारी थी झांसी। 5 जून 1857 को 12वीं पैदल सेना के सिपाहियों ने स्टार फोर्ट पर हमला बोल दिया, जो अंग्रेजी कंपनी का देन था। अंग्रेजों ने औरतों और बच्चों समेत झांसी किले में बना ली। इस समय तक विद्रोह की ज्वाला पूरे झांसी राज्य में फैल चुकी थी। 8 जून 1857 की सुबह सिपाहियों ने कैप्टन गॉर्डन को मार गिराया। गॉर्डन के बदले मेजर स्कीन ने सफेद झंडा लहराकर आत्मसमर्पण कर दिया और आजाद हो गई झांसी। आजाद हो गया मैं। ध्वज बदल गया। रानी लक्ष्मीबाई उस दिन मेरे आंगन में वापस लौटी। उन्होंने प्रजा को धन्यवाद दिया। मुझे गर्व है आप सभी, आपके हौसलों पर, आपकी बहादुरी पर। अगर आप लोग इस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े न होते तो हम ये जंग कभी नहीं जीत पाते। लेकिन याद रहे, खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। हमें चौकन्ना रहना होगा। अंग्रेज कभी भी पलटवार कर सकते हैं। हमें झांसी को फिर से उन्नति की राह पर लाना है। झांसी के विकास का काम शुरू हो गया। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने हर चुनौती का सामना अपनी बुद्धि से किया। हर तरह की घटनाओं से जूझते रानी लक्ष्मीबाई स्वयं को मजबूत कर रही थी कि एक दिन मोदी बाई एक बुरी खबर लेकर आए। श्रीमान, हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पूरे देश में बगावत की आग को अंग्रेजों ने बुझा दिया है। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर,
मेरी तात्या और राव साहब तो अपने 20,000 सिपाहियों के साथ कांटी में डटे हुए हैं। लेकिन क्या होगा? लेकिन श्रीमान, बिठूर और कानपुर की लड़ाई के बाद से नाना साहब और अजीमुल्लाह खां का कुछ पता है कि ये लोग कहाँ हैं। हे भगवान, वे दोनों जहाँ भी हो सुरक्षित। अंग्रेजी फौज किस ओर बढ़ रही है? क्या इसकी भी कोई खबर नहीं है? जी श्रीमान, राहतगढ़ और कानपुर में अंग्रेजी फौजों ने हमला किया है, पर वहाँ के हालात की पूरी जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन ये सूचना जरूर मिली कि जनरल फिरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज झांसी की ओर बढ़ रही है। हमें पता था हमें ये तिरंगी लौटे। हमें अब पूरी तैयारी कर ली है। मोदी भाई, चीनी को हमारा संदेश लेकर तात्या के पास काल की भेजी। तुरंत वो तात्या से कहें कि जब अंग्रेज झांसी पर हमला करे तब तात्या अपनी फौज के साथ अंग्रेजों पर पीछे से धावा बोल दे। इस तरह इन अंग्रेजों को समझने का मौका दूंगे। जी श्रीमान। राहतगढ़ से भी बुरी खबर ही है। अंग्रेजों ने वहां भाई फाजिल मोहम्मद खां को फांसी पर चढ़ा दिया था। उनके भाई अपने रिसालदार गुल मोहम्मद और लगभग 400 सिपाहियों के साथ झांसी पहुंचे। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से अनुरोध किया कि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए उन्हें अपनी सेना में शामिल होने का मौका दें। रानी ने भरोसा किया, अपनी सेना में शामिल करेंगे। 23 मार्च 1858 के दिन अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया। बारिश के धमाकों के बीच खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन झांसी में वफादारों की भी कोई कमी नहीं थी। फाटक पर ही अंग्रेजों पर टूट पड़े कुंवर खुदा बख्श। लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। रणनीति के अनुसार तात्या टोपे ने पेशवा के किनारे 1 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों पर धावा बोल दी, लेकिन अंग्रेजी फौज ने उन्हें पीछे खड़े दिया। रानी लक्ष्मीबाई की रणनीति विफल हो चुकी थी। अब उन्हें स्वयं ही अंग्रेजों का सामना करना था। रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन विश्वासघात के लिए थी। लड़ाई के 11वें दिन पीर अली और दुल्हनजू ने किले का ओछला द्वार खोल दिया। अंग्रेजी फौजें शहर में प्रवेश करने में सफल हुई। इधर किले के बुर्ज पर पहले गौस खां और फिर थोड़ी देर बाद मोतीबाई भी शहीद हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने 3 सबसे होनहार सैनिकों को खो दिया। आज भी इस किले की मिट्टी में एक सुपुर्द खाक है ये शूली। रानी अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर रही थी, लेकिन परिस्थितियां झांसी के विरुद्ध होती जा रही थी। उस समय अंग्रेजों को भ्रमित करने के लिए बहादुर झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण करके युद्ध भूमि में उतर गई। वेशभूषा के कारण झलकारी को रानी समझकर उनसे युद्ध करने। झलकारी ने रानी लक्ष्मीबाई और उनके पुत्र की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तभी मैंने देखा कि कैसे अपने घोड़े पर सवार पीठ पर ममता की चादर ओढ़े हुए रानी लक्ष्मीबाई मेरे किले की टूटी हुई दीवारों से और देखते ही देखते मेरी आंखों से ओझल हो गया। उस काली रात को मुझे झांसी से जाना पड़ा था, लेकिन मैंने प्रण लिया था कि जब तक जीवित हूं तब तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ती रहूंगी। मेरी इस लड़ाई में ग्वालियर के सैनिकों ने मेरा साथ दिया और मैंने बिना लड़े ही जीत लिया
ग्वालियर का किला। ग्वालियर की जीत स्वराज के लिए सिर्फ एक कदम है। हमारी लड़ाई इन फिरंगियों से है जो हमारे देश में घुस आए हैं। हमें इन्हें अपने देश से बाहर निकालना है और स्वतंत्र भारत का जो सपना हम सब ने मिलकर देखा है उसे पूरा करना है। भारत भूमि के वीर जवानों, अब वक्त आ गया है मातृभूमि का ऋण उतारने का। तो हो जाओ तैयार अंतिम युद्ध के लिए। हर हर महादेव। अंग्रेजों से अंतिम युद्ध का समय आ गया था। मुंदर, देशमुख जी, जवान सिंह, रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद रानी के साथ है। सूरज निकलते ही जंग शुरू हो गई। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार के आगे दुश्मनों के पैर उखड़ने लगे। पहला पहर रानी लक्ष्मीबाई के पक्ष में था। दूसरे पहर तक अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि अगर रानी लक्ष्मीबाई को नहीं रोका गया तो ये जंग कभी नहीं जीत सकेंगे। तभी फिरंगियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और हुसार दस्ते को रानी लक्ष्मीबाई से लड़ने आ गई। हुसार दस्ते ने भी ऐसी वीरांगना पहले कभी नहीं देखी थी। दांतों से घोड़े की लगाम संभाले और दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए शत्रुओं का संहार कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन उस दिन रानी का विश्वास पात्र घोड़ा उनका साथ न दे सका। एक नाले के पास पहुंचकर ठहर गया। रानी को हुसार दस्ते ने घेर लिया। खटक गया समय, खटक गई दिशाएं, खटक गई थी मेरी सांसें। दुश्मनों से घिरी रानी आंधी प्रबंधन की तरह लड़ती रही। तभी एक घाती दरिंदे ने उनकी पसलियों के पास तलवार से वार की। रानी चोटिल हो गई। उनके शरीर से खून बह रहा था, पर वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली थी। घाव खाकर भी पूरे दाव और चाव से उतरते हैं। एक कर शत्रु धराशायी हो रहे थे, इसीलिए उनके सर पर वार किया। इस बार उनकी आंख सौगीन हो गई, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी रानी डटी रही। हुसारों का सफाया करते हुए तभी गुल मोहम्मद और बाकी साथी रानी के पास पहुंचे। सबने देखा कि रानी नर से शिर तक खून से लथपथ है। देखते देखते रानी घोड़े की पीठ पर उड़ गई। मेरे मन में गूंज रहे युद्ध शुरू होने से पहले रानी कृष्ण। आज ये युद्ध का अंतिम दिन हो सकता है। अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हें मेरे पुत्र दामोदर की रक्षा करनी होगी। याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी मौत के बाद कोई भी फिरंगी मेरे शरीर को छूने ना पाए। गुल मोहम्मद ने रानी के घोड़े की लगाम संभाली और उन्हें जंग के मैदान की दूसरी ओर बाबा गंगादास जी की कुटिया में ले गया। रानी की हालत नाजुक थी। बाबा गंगादास ने उनकी नब्ज पकड़ी तो उनकी आंखों में नमी साफ दिखाई देने लगी। हम सब जिस घड़ी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे वो घड़ी हमारे सामने थी। बाबा ने रानी के मुंह में गंगा चढ़ाया। थोड़ी देर में रानी की आंख खुली। उनके आखिरी शब्द थे हर हर महादेव और ओम नमो वासुदेवाय। वो हमें और अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी मातृभूमि को छोड़कर सदा के लिए चली गई। रानी लक्ष्मीबाई की देह पंचतत्वों में विलीन हो गई। लेकिन रानी की शौर्य गाथा धरती आकाश की सीमाओं के पार कण कण में समा गई। रानी की कीर्ति समय के बंधनों को लाकर आज भी हमारे सामने मौजूद है। लोग कहते हैं कि उस दिन रानी मर गई थी,
लेकिन मैं जानता उस दिन रानी लक्ष्मीबाई युगों युगों तक अमर हुई, सदैव वीरता की मिसाल बनकर जिएगी। हर बोलों के हर बोलों के तू हमने सुनी कहानी है। तेरे हर बोलों के तू हमने सुनी कहानी है। बड़ी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है। झांसी वाली रानी कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेली थी, पर्ची डाल कर बांध कटाई उसकी यही सहेली थी। शिवाजी की नानाएं उसको याद सवाली थी। अरे खूब लड़ी मर्दानी পুরো ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন।